most of the jobs of MBBS will let you earn something between 50 to 75,000 per month. And plus the fact कि PG उसके ऊपर जो value addition करेगी, when you take that into perspective, then you don't want to set. Actually, not necessary for a lot of people. Yeah. हम बहुत लोग DM सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मतलब भेड़-चाल में कर रहे हैं. Culture है that people do end up leaving medicine and saying कि okay I'll do MBA or I'll give UPSC. तो मेरे माइंड में किसी पॉइंट पे एक कीड़ा आया था कि मेरे को MBA करनी है. Branch point that I decided was कि whether I have to stay in India or whether I want to go out. So I think after MBBS you get that. Especially because first year radiology का ना भाई सबसे boring है. Unlike other branches जो कि बहुत hectic होती हैं, first year में radiology first year is the least है. Theory के साथ एक procedure भी add हो गया है. Now there is a nerdy, there is an artsy, and there is a procedure. Turn and preparing for PG entrance. I think that was one of the worst time of my life, जो अभी तक का. And that also brings in a lot of self doubt, lot of lack of self esteem कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, and the whole uncertainty about this PG preparation phase. So hello everyone, welcome to episode 4 of our podcast. And today me and Aditya have two very special guests with us. Chaitanya and Arushi. Hi. Hello. Both of them are doing and pursuing their internship at AIIMS Delhi. And the topic for today's podcast essentially is what after MBBS. Yeah, so both Chaitanya and Arushi have completed their MBBS. They've completed their final prof, and now both of them are interns. Yes. So, first of all, Arushi, how are you feeling? I'm feeling great, and abhi internship mein it's getting a little hectic, and we're starting to learn all the work that we're supposed to do. So we've just begun, only 1 month, approximately 1 month हुआ है अभी करते हुए. So we have a lot to explore, but it's a good feeling that we have a doctor in front of our name. So that's a good feeling. So is that a good feeling? या मतलब थोड़ा change लगता है या अभी भी वैसे लगता है? How is it different from let's say ninth semester? एक तो we get to interact with the patients. वो जो interaction है वो बहुत different है. पहले हम as students interact करते थे. अब वो जब हमें approach करते हैं तो I feel कि हम थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा help कर पाते हैं पहले से, और different approach है patient के साथ. मैं पहले अब पैरासिटामोल लिख सकती हूँ. अब मैं पैरासिटामोल लिख सकती हूँ. Actually a feeling of power, I'll tell you. So I was in the medical oncology OPD है ना, as a IRCH जो हमारा कैंसर का एकदम टॉप नॉच हॉस्पिटल है. वेरी सिंपल थिंग. एक बंदा मेरे पास आया, कहता सर इस पे साइन कर दीजिए. तो पहले तो मैंने सोचा इसमें मैं साइन कर सकता हूँ. कैन आई साइन इट? तो मैंने कहा ला दे, आई विल रीड दिस होल डॉक्यूमेंट लाइक एन इंश्योरेंस पेपर. उसमें डॉक्टर इन चार्ज लिखा होता है. उस पे लिखा होता है हाँ कि द डॉक्टर इन चार्ज ऑथराइजेस दिस पर्सन टू गेट अ 50% कंसेशन फ्रॉम द इंडियन रेलवेज. ट्रैवल बैक के लिए उनको कंसेशन मिलता है. उनको ट्रैवल बैक के लिए कंसेशन मिलता है. मैंने कहा भाई मैं भारत सरकार की तरफ से तेरे को 50% का डिस्काउंट ऑथराइज कर सकता हूँ. But yes, you can actually. Yeah, you can. ठीक है यार, ले दो साइन. लाइक वेरी सिंपल थिंग. मैंने मतलब मेरा अभी गायनी का मेडल लगा था, उसमें उन्होंने पूछा तो मैं सबसे अच्छा क्या लगा अपनी इंटर्नशिप में, मैंने कहा मेरे को ये साइन करना पड़ेगा. I have that authority now. डॉक्टर बन गया फाइनली. डॉक्टर बन गया तो प्रॉपर फील आती है. स्पेशली वेरी ट्रू. मैंने अपने नॉन अकेडमिक जेआरशिप भी कर रहा था ना, तो किस में लैब मेडिसिन में की थी. ऑफ ऑल द थिंग्स उस वहां पे आई थिंक किसी मेरे से जो वहां पे जो कंसल्टेंट थे नाराज थे, कहते यू आर अ डॉक्टर नाउ, तुम अपने साइन से किसी को मरा हुआ घोषित कर सकते हो. which is actually true. है ना. आपने इंटर्नशिप में किसी को डेड डिक्लेयर किया था? मैंने नहीं किया फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. बट टाइम ऑफ डेथ कॉल करता है ना डॉक्टर कॉल्स द टाइम ऑफ डेथ. बट हमारे टाइम पर ड्यूटी डॉक्टर होता था इमरजेंसी मेडिसिन में. इमरजेंसी मेडिसिन में एक बार किया हुआ सीपीआर किया था उस समय. बट अगेन द ड्यूटी डॉक्टर हैज अथॉरिटी की डेथ सर्टिफिकेट पे क्या टाइम जाएगा वो अथॉरिटी. तो वो यूजुअली रेजिडेंट ही कर रहे होते हैं. बट ठीक है, बट एटलीस्ट एज अ इंटर्न आई गेस वो वाली दैट्स द डिफरेंस बिटवीन That's the difference, 9th yeah. सेमेस्टर एंड बीइंग एन इंटर्न. ऑल्दो मेरी अभी इलेक्टिव चल रही है तो आई एम रिलेटिवली फ्री. आई थिंक जब आप विलेज पोस्टिंग जाते हो, स्पेशली एम्स की विलेज पोस्टिंग थोड़ी मुझे लगता है बाकी कॉलेज से थोड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर इंटर्न्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. एंड एम्स की विलेज पोस्टिंग हैज अ लॉट ऑफ आईपीडीज एज वेल. इन पेशेंट्स भी बहुत होते हैं, स्पेशली बल्लभगढ़ में एंड दयालपुर में भी. तो वो ज्यादा फीलिंग होती है कि आप एक्चुअल पेशेंट्स देखते हो, स्पेशली जब आप बल्लभगढ़ में डिलीवरीज कराते हो खुद बैठ के ना, कि बस एक नर्सिंग स्टाफ है आपकी, डिलीवरी भी ले रहे हो, बच्चे का सक्शन भी कर रहे हो, तब एक्चुअली आपको लगता है वो डॉक्टर वाली कि आप ही हो
वो वो actual याद है कि रात pressure के feel 4 होता है। बजे, सुबह के 4 बजे, रात के 4 बजे एक like fully dilated type सा लड़की आती है, and then she's like कि the mother-in-law says कि हमें तो महिला वाली डॉक्टर चाहिए या महिला डॉक्टर चाहिए. So it's 4 o'clock in the night. I'm all like वैसी नींद आ रही है and everything. स्टिंग पी के बैठे है हो ना? उस समय में स्टिंग भी नहीं होती थी. ठीक है, रेड बुल पी के बैठा हुआ. ठीक है, I'm like भाई मैं ही हूँ जो हूँ. पसंद है तो आ जाओ अंदर. डिलीवरी हो जाएगी, नहीं पसंद तो जाना है जाओ. फिर ऑर्डर हो जाएगी. बट उस टाइम पर लाइक आप ही ड्रोटिन भी दे रहे होते हो, आप ही मिसोप्रोस्टॉल भी आप दे सकते हो. Exactly, मतलब it's the jokes apart and everything. The context basically was that मैं ही हूँ in the means that you are actually the person responsible there. You're actually managing the patient. Managing there. the Otherwise patient. तुम directly Independently manage- managing independently the managing the patient. एंड patient. मतलब देखा जाए तो ट्रांजिशन बस 1 साल का ही हुआ है. इससे पहले आप मेडिकल हाँ मतलब it's I started my internship, मतलब बल्लभगढ़ मेरा स्टार्ट हुआ था अप्रैल में. तो अब दिसंबर में मैं Final वाइवा job दे रहा हूँ और मैं अप्रैल में सडनली मैं डिलीवरी ले रहा हूँ. तो हाँ डिफरेंस तो होता ही है. So did you like that feeling or did you not like it? मतलब was that a good feeling? मतलब So- since we are talking about what after MBBS. So I think the feeling जब मैं village posting में as an individual authority था, that frankly I like that feeling. मतलब I used to discuss patients कैसे मैनेज करना है. मॉम को I used to call, पूछता था कि क्या करना चाहिए और ना, क्योंकि मुझे थोड़ा कम आता था. as an intern you don't know such lot of things. But एक बार जब village posting खत्म हुई, I came back to the main hospital, तब then again it's a very sheltered atmosphere. आपकी वही hierarchy चलती है, वही order Decision making आप पे नहीं आ रहा. हाँ, तब I again felt very bored frankly. And उस टाइम पे since internship भी होता है, आपके पास PG entrance का भी एक pressure चल रहा होता है, तब I thought वो भी साथ साथ चलते रहते हैं कि चलो अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि authority भी नहीं आ रही इतनी, अभी नहीं आ रहा थोड़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं. But the whole feeling एक बार जब अप्रैल में खत्म हो जाता है ना इंटर्नशिप का, मार्च अप्रैल तक आ जाता है, फिर थोड़ी फटनी शुरू हो जाती है. चलो अब तो एमबीबीएस हो गई, अब तो पढ़ाई करनी है. अब क्या करना पीजी है? इंटरेस्ट के लिए हाँ, पढ़ना है. PG मतलब कुछ करना है एटलीस्ट. मतलब हाँ, मतलब कुछ करना है. एंड वो थोड़ी एक अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि अब दिसंबर में इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, हॉस्टल कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी, हॉस्टल वाले निकाल हॉस्टल वाले निकाल देंगे. देंगे, घर वाले कहेंगे कि अब क्या अब तो MBBS कर दिया, पैसे कमा. अब पैसे कमा या फिर घर जाके पीजी प्रिपरेशन करो. अब ते 5 साल हो गए, अब कॉलेज में रह रहे हो, दोस्त बन गए, मस्ती हो हॉस्टल रही लाइफ है. से ट्रांजिशन है ना वो लाइफ. हाँ. Actually, the thing is, we talked about like what after MBBS and we're talking about uncertainty. He's right. Society expects कि MBBS डॉक्टर हो, तो अब माला माल हो गया, as if यहाँ आपके पास पैसे होंगे. क्योंकि and everything. आई थिंक इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट Concept है. यहाँ यहाँ पे पे placement प्लेसमेंट का हमारा concept- पैकेज कितना लगा, हाँ. मतलब दैट्स द यहाँ पे कोई प्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं है, एंड यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न, बट देन द वे टू अर्न मोर इज पीजी, for which you need to study at least for a year. Let's say if you have an hectic internship, you won't be able to study, which means you have to go back home, and that is the confidence downgrader. वही है, एग्जैक्टली कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, पर आप घर पे बैठे हो विदाउट हैविंग अ जॉब. क्या कर रहे हो जी? पढ़ाई कर रहे हो. एंड वो मामा पापा को भी अच्छा नहीं लगता. मतलब आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिव्या. लाइक so Divya, when she was taking a drop for NEET PG, her father always used to say कि जाके कहीं at least job तो कर, right? And taking my own example, मतलब मुझे भी लगा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा, मतलब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, which ended up me taking a non-acad JRship as a job, है ना, कि चलो एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले छोड़ देंगे, जो नहीं छोड़ा, लकीली टाइम मैनेज हो गया. बट उस समय तो यही कंसेप्ट था ना कि मतलब we have a professional degree in our hand. More importantly, अगर हमारी बात करें मेयर ऋषभ की, तो we have a professional degree technically from the best city of the country, है ना. So अब हम लोग बेरोजगारी बैठे हैं. हाँ बेरोजगार हैं क्या, मतलब एम्स के like डॉक्टर that. होके आई थिंक इन दैट सेंस ओवरऑल एमबीबीएस डजंट क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी. एमबीबीएस के बाद उस तरीके This thing I disagree with. What I feel is that still, if we compare it to the rest of the avenues that is available for a normal person, an MBBS graduate stays way more employable as compared to, let's say, another engineer, B.Tech, or B.Com, let's say another person from a normal graduation. It's just that those jobs are not
high paying. I'm not saying they're low paying. Hmm. They're not high paying. Most of the jobs of MBBS will let you earn something between 50 to 75,000 per month, which is not a Very Bad good salary, but it's not very but considering the high. amount of ego inflation we have gotten during our MBBS, as if हम लोग डॉक्टर बन के हम लोग पता नहीं क्या उखाड़ने वाले हैं, मतलब you know ऐश या पैसा ही पैसा and all that. Then 50 to 70,000 doesn't feel that much big an amount, and it definitely is not an amount on which you can sustain for a very long period of time. And plus the fact कि PG उसके ऊपर जो value addition करेगी, when you take that into perspective, then you don't want to settle. Don't want to settle for Settle 50 for to 70. 50 to exactly. Don't want to settle for 50 to 75,000. You will always have an employability. मतलब employability का भी issue Employability रहेगी. So unlike so मेरे को याद है एक बार मैंने LinkedIn पे एक पोस्ट देखी थी. Some 38-year-old guy. And he said something on the lines that I'm without work for past 1.5 years. Like this is my profile. Earlier I was making some 2-3 L per month types. मैं manager positions expect कर रहा हूँ. Please आप कहीं पे हो तो आप मुझे बता ऐसी दें. काफी पोस्ट आती हैं. I think. हाँ मतलब मेरे को बता देना, but like they go through that funding winter and all that. मैं manager post expect कर रहा हूँ and मतलब even if not for a 2L salary, I'm okay with a 1.5L salary. LinkedIn पे लिखा हुआ था. So then that's when I realized that is a very big plus point of being a doctor. Like आपको कहीं ना कहीं if you're willing to adjust even a little bit कि मतलब if you're okay going outside of the metros, you'll get a decent job with a decent salary even for being an MBBS doctor. But the thing is that as a doctor you always crave for more professional achievement. वो obviously inherent है या societal pressure है. I think दोनों expectations भी होती हैं. Which is the reason you want to do post graduation. Because post graduation के बाद obviously salary jump ज़्यादा होता है. सैलरी जंप भी ज्यादा होता है, पीजी के बाद पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होता है. पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है इस पूरी जर्नी का. मतलब आई रिमेम्बर इवन फ्रैंकली एमडी के बाद डीएम करना ना करना एक बहुत बड़ी पर्सनल चॉइस है. हाँ मतलब I would actually want to say this at this point कि DM is actually not necessary for a lot of people. हम बहुत लोग DM सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मतलब भेड़ चाल में कर रहे हैं. हाँ मतलब DM I think is more of a and I'll say this from myself, my own perspective as a MD, मतलब DM in pediatric oncology. Peds with a DM genuinely भेड़ चाल है. Peds is still a end branch. Still in Peds, you will earn more being an MD pediatrics, like being MD pediatrics rather than being, let's say, DM pediatric oncology. मतलब earn, if not earn more, satisfied with a similar level of satisfaction. Similar like level of said. satisfaction. By doing pediatric oncology, I'm actually limiting myself to the bigger metros of the country. While by being an MD pediatrics, I could have actually gone anywhere in the country. हाँ आपकी स्किल, हाँ आपकी openness to shift, openness to change places कम हो जाती है by doing my DM, even if, and the salary jump is not exactly like, you know, as big from as between MBBS MBBS to to MD. MD. So MD to DM salary jump for most of the MD to DM, to किसी भी surgery में ले ले या उसमें ले ले, it is 10 या maybe 20%. Versus like MBBS में तो it is actually 100x, not 100x but 2x and 3x jump है. कि अगर आप MBBS के बाद 70,000 कमा रहे हो, आपने let's say pediatrics कर ली, तो आपकी salary immediately MD pediatrics की salary in a tier 2 या tier 3 city is easily 2 to 3, not 3 but 2 to 2.5L आपको मिल सकती है आराम से. Even in tier 1 towns like Devya still earns 1.5L per month. तो वो एक 50 like double X jump है. But अगर Devya DM कर लेगी तो वो सैलरी जब इतना ज्यादा नहीं होता, 1.5 से 2.5 आएगा, and you're limiting yourself to being in a tier 1 city. So especially तो frankly मतलब DM का concept is mainly for a hospital based setup, and hospital based setups require this segmentation because that attracts people to the hospital. That multi-speciality वाला. Yeah, that attracts people to the hospital, and that's why that segmentation. अब DM gastroenterology में भी you are hepatologist, liver specialist, your IBD specialist. वो तो obviously this is a corporate culture ना. This cannot sustain on an OPD. Either an absolute corporate or either an absolute academic. मतलब or an absolute academic. या मतलब अगर let's say मैंने DM Peds किया तो मतलब the reason for me doing DM Peds was not कि was actually this कि मैं tier 1 में रहना चाहता था या मैं एक academic center में ही रहना चाहता था. जहाँ तुम
academically इनफैक्ट तुम ये भी देखो कि इनफैक्ट एम्स के बहुत सारे डीएम्स go into academic positions in other aims and other colleges. That is why a lot of people do DMs. But for a mainly job satisfaction, money, employability, DM is not a necessity at this point. So let's come back to our topic. What after MBBS? So this is Chaitanya. Let's ask this question from you. What after MBBS? What do you plan to do after MBBS? I mean, obviously, like we have discussed, कि एक option तो ये हो गया कि there is an employability. मतलब obviously भीख नहीं मांगनी पड़ेगी is a given with a prospect of employability. But I don't see, like we talked about, कि value addition है in PG. So from the way I am seeing it, is you decide whether I want to stay in medicine or whether I want to escape medicine, right? कि मैंने जैसे internship में, if I liked the process like you said, I will stay with medicine. And especially AIMS में थोड़ा सा culture है that people do end up leaving medicine and saying कि okay, I'll do MBA or I'll give UPSC. UPSC. And taking those routes which are slightly unconventional, I'd say. UPSC तो फिर भी लोग लेते हैं. MBA would again be a smaller fraction that people end up doing. तो मेरे mind में किसी point पे एक कीड़ा आया था कि मेरे को MBA करनी है. But then I think overall I realized that I do like medicine and I would stick to that path. And then the second branch point that I decided was कि whether I have to stay in India or whether I want to go out. So I think after MBBS you get that divergence कि मुझे USMLE करना है या NEET PG आना है whatever. US UK करना है या NEET PG करना है. UK flap देना है whatever. तो उसमें I am a single child. My parents are doctors in Chandigarh. तो मेरा थोड़ा सा इस inclination से था कि मुझे इंडिया में रहना है. So from that perspective मुझे entrance के लिए prepare करना है and अभी कुछ non-surgical branch में I want to do my MD. That's the तो मेरे जैसा है idea that I have. एकदम मेरे जैसा है. So that's why last. और रेडियो नहीं करना है because I like patient care. मतलब interventional aside मेरे को रेडियो मतलब I think रेडियो नहीं करना चाहिए. Frankly जिनको पसंद है ना clinical and medical disorders especially, they should not do radio because वो बहुत unsatisfied रहते हैं. And I see it very frequently among residents also who join radiology. Especially because first year radiology का ना भाई सबसे boring है. Unlike other branches जो कि बहुत hectic होती हैं, first year में radiology first year is the least hectic. नहीं मैं expect कर रहा था कि आप बोलोगे कि internship में you did not like the patient care aspect much and that's why probably you were inclined to radio. मतलब ऐसा मेरा perspective है. मुझे obviously उतना exposure नहीं मिला है. My reason मैंने internship frankly अच्छे से लगाई है. मैंने internship में काम किया है. मतलब मैं ना वो gynae OPD में जाके भी endometrial sampling वगैरह करता था. I did work in internship. My reasons for choosing radiology was I did not like medicine, like MD medicine. I did not like medicine or pediatric, and for that And other surgical medical branches. branches. And for that matter, other medical branches. I liked surgical branches more. And then I compared the whole journey of my surgical career. I like envisioned my journey of a surgical career, and that didn't suit me. मुझे लगा कि ये नहीं करना है मुझे कि 3 साल मैंने MS करी, फिर MCH करी, फिर एक फेलोशिप करी, फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगा, फिर वहां पे 5 साल The learning curve, the learning curve and the ladder and the whole hierarchy. That did not suit me at that point of time, and that's why radio had a lot of everything. A had an interventional aspect to it. B had a good money and offered a good life as well. Good life as well. मतलब वो अब आप वो life लेते हो या फिर you still work for 8 इससे वो थोड़ा सा वो आपकी choice है, but at least it offers that lifestyle, which a lot of other branches don't even offer. पर मैं इस चीज से हल्का सा मैं डिसएग्री नहीं करता व्हाट यू सेड, बट मेरे को ये लगता है कि लाइक आई नो आई एम समवन जिस जो मतलब मेरे को पेशेंट देखना अच्छा लगता है. मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करने वाला. और I'm good at it also. Let's put it that way. Like if some patient needs me, मुझे पता है वो मेरे से मिलके खुश होके ही निकलने वाला है. Something which everyone other people have also praised about me. I'm in general a very people pleaser kind of a person. People pleaser. हाँ. People pleaser है इसकी personality है. My personality is like that. तो वो मेरे को उसमें कोई doubt ही नहीं है कि वो मेरी personality वैसी है तो क्या कहते हैं happy go lucky people pleaser personality है तो पेशेंट भी खुश रहता है. मेरे को भी उनसे गप्पे लगा के अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता. Despite that, I still feel that like a big chunk of every doctor's personality involves
them being nerds, like big nerds. Okay, and the one branch that satisfies that nerdiness is radiology. Yeah, why radiology Okay. is very academic. Very academic. Very academic. Very academic, very nerdy. So, just because you like patient care does not mean that you cannot like radiology. मतलब हाँ, तो उस वो- बात से मैं disagree करूंगा कि अगर patient care पसंद है obviously then maybe you are more suited for medicine and pediatrics, but it does not mean you are not suited for radiology because radiology is so nerdy कि अगर आप वो nerdy हो, आप डॉक्टर patient care आपको अच्छी लगे that's fine, but अगर आप nerdy भी हो in fact one of the reasons that जो toppers होते हैं ना बैच के, हाँ वो रेडियो इसलिए अगर वो लेते रेडियो ले लेके लेते खुश हैं ना, नहीं and they are very happy is because radio is so nerdy. yeah, तो they're मेरे को very ये लगता है happy कि with शायद although मैंने पीड्स ली and I'm happy with the patient interaction, but let's say मैंने रेडियो भी ली होती तो मैं रेडियो में भी बहुत खुश होता, like you were asking आपका about the nerdy वाला एस्पेक्ट सेटिस्फाई हाँ। हो जाता, हाँ। चाहे पेशेंट केयर वाला थोड़ा कम भी हो जाता exactly. जैसे आप ज़ैनब का एग्जांपल है ना, ज़ैनब हाँ। was like the one of the toppers of the class. उसको तो पीड्स करनी थी in fact. हाँ, and she wanted to do peds and she took radio and that was the best decision she said that she took. है ना? कि पढ़ना पसंद है ना ज़ैनब को. ज़ैनब छोड़ बग्गा ले यार. हाँ यार बग्गा ले लो. बग्गा is a bigger example as compared to Zenab. बग्गा तो एकदम नर्ड लगते भी बग्गा है. proper nerd है. बग्गा wanted to do pediatrics. बग्गा proper nerd है and he loves radio. So I think that is definitely there कि जो nerd है academic में जाना चाहते हैं उनको रेडियो बहुत सूट करती है. आप अपना आराम से at your own pace अपने रूम पे अपने रिपोर्टिंग रूम में पढ़ते रहो. इसका यूजर नेम भी द नर्डी डिवा है. फर्स्ट ईयर में रखा था. So actually you can take a decision if you want to, like, you know, if you're someone confused between medicine and radio, let's say, if you are more nerdy than patient carry, then That patient care. patient carry, whatever This is it a is, nice let's put term. like, you know, Patient carry. like, तू you बता know, भाई you क्या करना है तेरे को, what after MBBS? आरुषि, what do you plan to do after? मेरा थोड़ा आपसे सिमिलर है ऋषभ. आई एम श्योर कि मुझे मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स नहीं करना है. थोड़ा सर्जिकल लाइन में ही जाना है. आई फील कि मेरे को कुछ हैंड्स ऑन चाहिए, मतलब थ्रू आउट माई प्रैक्टिस आई फील कि कुछ हैंड्स ऑन रहे तभी आई विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग. या मतलब कुछ तो rapid ऐसा नहीं है कि turnover. pediatrics में प्रोसीजर नहीं है. pediatrics में भी तो प्रोसीजर्स हैं, लाइक आदित्य डज बट उसमें वो पेशेंट कैरी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा Yeah, है. मतलब they mainly see patients and sometimes do procedures. As मुझे compared to you mainly mainly do procedure doing procedures चाहिए. and हाँ. sometimes seeing patients. मुझे मेनली प्रोसीजर चाहिए. मुझे कि रोज कुछ हैंड्स ऑन करने को अब मिले. ये पेशेंट केयर के साथ एक प्रोसीजर ही भी ऐड हो गया है. Now there is a nerdy, there is an artsy, and there is a procedure. patient care. Patient care. But I want to also bring to a bigger picture here कि ठीक है हम सब करना तो चाहते हैं, but when I look myself in 2018 when I was preparing 2017-18 when I was an intern and preparing for PG entrance, I think that was one of the worst time of my life जो अभी तक का. 11-12 भी PMT का आप देते हो, बट मे बी उस टाइम पे माहौल ऐसा होता है. 11-12 आपने पूरा डेडिकेट कर रखा होता है अपनी जिंदगी में, आपके घर वालों ने डेडिकेट कर रखा होता है अपनी जिंदगी में. इसके बाद तो लाइफ सेट हो ही जाएगी. मतलब ये 2 साल तो भाई कुछ और करना ही नहीं है लाइफ में, बस यही एग्जाम क्लियर करना है. समहाउ ऐसा माहौल नहीं बन पाता इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप के बाद. एंड थोड़े आप अलोन भी होते हो जर्नी में, क्योंकि पेरेंट्स उतने इन्वॉल्व नहीं होते आपकी लाइफ में. आपके पार्ट नॉलेज भी नहीं होता है. नॉलेज भी नहीं होती, थोड़ी स्पेशलाइज्ड काम है. आप थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो. I felt a little lonely during that journey, and that also brings in a lot of self doubt, lot of lack of self esteem कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, and the whole uncertainty about this PG preparation phase. So first of all I'll ask you, Chaitanya, are you feeling that sort of uncertainty right now? I would say yes, because again I am first uncertain कि क्या मैं internship के साथ ही अपना PG निकालना चाहता हूँ कि नहीं. मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा is a secondary question. चाहता भी हूँ. But क्या ये मैं चाहता हूँ, because I am feeling कि everything in life has been so consecutive कि मतलब 12वीं खत्म हुई, उसके बाद MBBS हो गई, अब मतलब you know 4.5 साल हुए, पास किए, अब इंटर्नशिप है, उसमें भी मतलब जितना भी काम है, जो भी काम है, उसके बाद डू आई वांट अ ब्रेक, डू आई नीड, बिकॉज उसके बाद भी ऐसे थोड़ी कि एमडी कोई मिलने के बाद कोई रेस्ट है, उसके बाद भी तो रेजिडेंसी हेक्टिक ही है. एंड सो आई मीन आई डोंट नो कि क्या मुझे 6 महीने का रेस्ट चाहिए बीच में. मतलब आई डोंट नो, दैट्स लाइक द फर्स्ट अनसर्टेनिटी दैट आई हैव.
that do I want to clear it in the first attempt or not? Do I want to do my internship well? Do I want to, skimp and be a kamchor during my internship and study, do modules and stuff, or do I want to, attend internship and be relaxed about the fact कि मैं 6 महीने बाद निकालूंगा? सेकेंड थिंग कि अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को निकालना है अभी, तो क्या निकलेगा साथ के साथ? नहीं निकलेगा। निकलेगा तो क्या मुझे मेडिसिन मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेडिसिन मिलेगी तो क्या मुझे एम्स पीजीआई में से कहीं मिलेगी कि मुझे कुछ और करना, मतलब कहीं और जाना पड़ेगा? एंड अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो वहाँ मेरी लाइफ कैसी होगी? एक बबल भी तो होता है जहाँ से तुमने एमबीबीएस करी है वहाँ का, मतलब इवन फॉर दैट इज ट्रू फॉर फ्रैंकली लॉट ऑफ कॉलेजेस, इवन जो स्टेट कॉलेजेस से भी करते हैं, दे आल्सो वांट टू स्टे इन द सेम कॉलेज, चाहे जो कोई चीज बेटर हो वर्स हो, मतलब कोई मेरे को कहता है ना कि पीजीआई की मेडिसिन बेटर होगी एम से, आई एम लाइक होगी। मैं तो इधर रहता हूँ ना, तो मेरा तो बबल यहाँ पे है। So coming to your question, I would say कि जो second question तेरा है कि मुझसे निकलेगी नहीं निकलेगी, frankly वो तो कोई predict नहीं कर सकता। But the whole first question is very important कि यार whether I want to crack it in the first attempt or not. What मुझे इसका जो answer in retrospect मिला and what I also personally feel कि ठीक है, हो सकता है आप उतना effort ना डालो internship में, but you should definitely start preparing during internship. There is no doubt about it कि you should start preparing during internship because आपका 6 महीने में निकल जाएगा। फिर अगर आपने शुरू अगर स्टार्ट ही नहीं करा ना इंटर्नशिप में पढ़ना, तो फिर 1 साल बाद निकलेगा, वो हैबिट नहीं डेवलप होगी। हाँ, मतलब एक आप इंटर्नशिप में करते रहते हो ना, एक तो आप पेशेंट्स देखते रहते हो, थोड़ा टच में रहते हो, काफी क्लिनिकल क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। एक दूसरा, 1 year इज अ वेरी बिग गैप टू प्रिपेयर वर्सेस 6 months ड्यूरेशन। तो तुम फिर फाइनल क्रॉप भी भूल जाओगे बेसिकली, आई थिंक दैट्स द पॉइंट की। और फिर सारी साइकिल्स, तेरी फर्दर साइकिल सब 6 months की होंगी। अभी तेरी एक पूरी साइकिल 1 year की होगी। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट एट योर ओन पेस एज वेल। जैसे मैंने भी फ्रैंकली, हमारा विलेज पोस्टिंग वाज जस्ट बिफोर दी नवंबर आया ना, तो मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, बट मैंने तब भी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए थे कि चलो इतना मैंने पढ़ लिया है, ताकि फाइनल क्रॉप अभी हुआ था तो आई गॉट अ डिसेंट रैंक ऑफ 187 तब भी, एंड फिर 6 months प्रिपेयर करके आई गॉट रैंक 4। बट अगर मैं बिल्कुल ही ना कुछ पढ़ता ना, आई वुड कुछ भी ना पढ़ते देन स्टार्टेड आफ्टर इंटर्नशिप, आई श्योर 1 साल लग जाता। फिर वो वही 6 महीने यू हैव टू पुट दैट एफर्ट एट सम पॉइंट, तो मतलब करना ही पड़ेगा ना आपको। और जस्ट आप 6 महीने आफ्टर इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं खलते प्रिपेयर करने, तो थोड़ा ब्रेक ले लो। आई थिंक 3-4 months टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट अ बैड आइडिया, बट आफ्टर दैट थोड़ा बहुत पढ़ना इज डेफिनेटली मैटर ड्यूरिंग इंटर्नशिप। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड वो एडवाइस रीइंफोर्स होते रहे तो हाँ, मतलब सिचुएशंस एक्चुअली अलग होती हैं यार इंटर्नशिप में ना। कहीं की कॉलेज की इंटर्नशिप हेक्टिक होती है, अगर कहीं लाइट है तो पोस्टिंग्स हेक्टिक हो जाती हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो सबका सिनेरियो सेम नहीं होता। वो एकदम वेन डायग्राम बने कि आपको आता भी सब है, आपके सर्कमस्टांसेस भी सारे सही हैं, आपकी रैंक भी आ गई, वो तो कम ही लोगों के लिए फिट इन हो पाता है। मेरे को ये लगता है कि तेरी ब्रेक वाली बात से, तूने भी नहीं लिया है बाय द वे कभी भी ब्रेक? 6 महीने वाला अगर मानना है तो हाँ, तूने भी इंटर्नशिप में पढ़ाई था वो तो। हाँ, मतलब फ्रैंकली मैंने तो प्रिपेयर इसलिए किया था कि नंबर ही निकालना। हाँ, तूने तो स्टार्टिंग से पढ़ा था, वो बीच में मचा मेरे साथ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो मतलब ना मचा होता तो मैंने नवंबर निकाल ही लेना था मोस्टली। तो बट 6 महीने ब्रेक लेके ना मेरे हिसाब से कुछ सी, अगर आपको लेना पड़ रहा है या सर्कमस्टेंसेस लाइक कि इंटर्नशिप में नहीं टाइम मिल रहा है, फिर तो चलो लेना ही है। तब तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं करना। Like now when I'm going to complete my DM, मतलब मैंने MD और DM के बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया, which is in fact most people end up taking वहाँ पे, जो मेरा वो कोई ब्रेक नहीं आया। ब्रेक के ऊपर पहले मैं थोड़ा ambivalent हूँ, मतलब पहले मैं मानता था कि कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, simply because अगर जो जर्नी ऑलरेडी 11.5 पहले इतनी लंबी है, उसमें क्यों तुम उसको खींचना चाहते हो? मतलब जो ऑलरेडी च्युइंगम है उसको क्यों और चबाना चाहते हो टाइप। पर अब मुझे लगता है कि अगर ऑलरेडी इतनी लंबी है तो फिर 1-2 साल लंबी और हो गई तो भी क्या फर्क पड़ेगा, है ना? माइट एज वेल डू इट एट योर ओन पेस, है ना? दैट आई एग्री, वो वाली पार्ट मुझे लगती है ना। असल द प्रिपरेशन पार्ट इज कंसर्न, 100% एग्री विद यू। Please complete some subjects in internship. It will always be even if you have the most hectic internship,
फर्स्ट सेकंड ईयर तो कोई सकता है। फर्स्ट सेकंड ईयर आराम से हो सकता है। चुपचाप बैठ के सिर्फ तो कर फर्स्ट लेना चाहिए यार। सिर्फ फर्स्ट एड उठाओ और फर्स्ट एड उठा के जो भी फर्स्ट सेकंड ईयर रिलेटेड चीजें हैं वो एटलीस्ट अपनी इंटर्नशिप में कर लो एंड यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर। ठीक है, मतलब और कुछ मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो तुम इंटर्नशिप कर रहे हो तो फाइनल प्रॉफ की चीजें तो तुम कर ही रहे हो। अगर हेक्टिक है तो वैसे ही कर रहे हो, करिए, कह हाँ रहे हो, एग्जैक्टली है ना। अगर हेक्टिक है तो वैसी वाली चीजें तुम कर ही रहे हो, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, जो भी है जैसा भी है। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ उठा के, अगर हेक्टिक इंटर्नशिप है तो फर्स्ट एंड सेकंड को उठा के पढ़ लो, 6 महीने बाद एग्जाम निकल जाएगा। हेक्टिक नहीं है तो जैसे भी तुम्हारा मन है, पहली बार निकालना है, 6 महीने बाद निकालना है, जैसे करना है, दैट इज टोटली योर विश। तो उस चीज को मैं नहीं डिनाई करता, एज फार एज व्हाट ऋषभ सेज की यू नो कि इंटर्नशिप में हाँ स्टार्ट कर देना चाहिए, और एटलीस्ट यू कैन इजीली फिनिश ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ। ए 1 year is too big a time, is enough a time to do that। पर मैं इस चीज को भी आजकल काफी वो देता हूँ कि you should take a break and maybe take a step back। Like for a lot of people who are preparing for the postgraduate entrance examination, the step back part what I'm talking about is related to कि think whether it is A in the first place the thing for you। For a lot of us we are just going it because हम लोगों को करना है, लोग बोल रहे हैं तो करना है। तो तुम बैठ के आराम से रुक सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, निकल जाता है पीछे। अनसर्टेनिटी है नो डाउट, बट द सर्टेनिटी इज कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, 60-70 हज़ार रुपए महीने के मिलते रहेंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई अभी मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ मेरे को अलाउ नहीं करती, या मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ 4.5-5 years ऑफ दिस जर्नी से, एंड मैं ब्रेक लेके पीजी करना चाहता हूँ, तो don't compare yourself to someone who cracked it in the first attempt। Absolutely don't compare it to। I know a girl, not know a girl, but मैंने किसी ने एक कमेंट किया था कुछ कि मैंने अपनी एमबीबीएस के बाद 3 साल पूरा गैप लिया, सिंपल बस नॉर्मल काम किया बिकॉज मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना था, और उसके बाद मैंने अभी निकाल के साइकियाट्री ले लिया है, साइकियाट्री ले लिया है। So that is a perfectly valid thing to do। मतलब what I'm basically trying to say is कि if we are saying at this point of time that internship में पढ़ लो, please don't construe it as कि internship में ही निकालना है या 6 महीने के अंदर ही निकालना है या maximum to maximum 1 साल ड्रॉप लेना है। What we are saying is that if you do it in internship, the rest of the process, if you study somewhat in internship, the rest of the process does become डर नहीं easier। लगता कि तुमने इंटर्नशिप में कुछ नहीं किया है, तो कुछ रह गया है, So उस type की the rest of the process does become easier। Having said that, if you want to take a break after it, or if you just want to earn 70,000, 80,000, 60,000, 70,000 rupees after MBBS and spend that money exploring the world or exploring other options apart from MBBS, apart from post graduation, that's also perfectly fine। Do it at You are your own not in a pace। you are not in a rat race। You are absolutely not in a rat race। Especially PG is something that आप कभी भी कर सकते हो। Frankly, I know my batchmates who have like prepared for 1 or 2 years for UPSC after MBBS, and then have come back to PG and तो cracked आप it। कभी कर लोगे, तो आप कभी भी कर ही सकते हो। कर लोगे। तो That is like PG, another what after MBBS, this I want to say this way। PG is a safe option, although it's not an easy option, but it's a safe option। तुम 3-4 साल बाद भी forget everything। अगर कल को मेरे को मान लो मन करता है कि मेरे को पीठ छोड़नी है, ठीक है, भाई मेरे से नहीं देखे जा रहे बच्चे मरते हुए एवरीथिंग, और मेरे को अपना नर्डीनेस एक्सप्लोर करना है, मेरे को डीएम मतलब मेरे को रेडियो करनी है, तो मैं कल बैठ के एग्जाम देके फिर से रेडियो कर सकता हूँ। हाँ सही बात है ना। तो इन दैट वे आप डबल एमडी कर सकते हो। हाँ कर सकते हो। It's not सेम इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते। जैसे एम्स में अगर आपने एमडी पीट कर ली तो अब मैं फिर से एम्स से नहीं कर सकते, रेडियो नहीं एम्स कर दिल्ली सकता। से कहीं और एम्स से कर सकते हो, कर सकता हूँ बट पीजीआई से कर सकते हो, नीट से कर सकते हो। एम्स दिल्ली क्यों 2 एमडी करना अलाउ नहीं करता, मतलब कि है, आप उनकी policy है। रिसोर्सेज खा रहे हो फॉर वो भी बेसिकली उनकी पीपल। पता नहीं कुछ है पॉलिसी। बट हाँ मैंने ऐसा कुछ सुना हुआ है कि तुम 2 एमडी नहीं कर सकते ऐसा। अगर तू एमडी भी नहीं कर सकता तो डीएनबी कर लूंगा यार मैं बहुत ठीक है। नहीं बहुत सारे न्यूक्लियर मेडिसिन एमडीज डू एमडी रेडियोलॉजी Radio बहुत स्टेट common मेडिकल है। कॉलेज नीट के थ्रू। हाँ सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मतलब बहुत एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिस ना, डबल एमडी तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लोग आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन देयर एमडी इन एनाटॉमी फ्रॉम एम्स और सम preclinical branch, and then later they did DCH or डिप्लोमा इन some kind of diploma
and then what they do is that MBBS MD bracket aims child specialist. So I actually know people like this. Okay, that you have done technically DCH, but from a third person perspective, you're writing MD bracket. You have a aims. degree from AIMS. You have a degree from him. It's an anatomy degree nonetheless, but Uh-huh. it's a degree from him. So you can do it at any given point of time. There is no harm in that. Which is the reason why it's a safe degree. हाँ निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी 6 महीने 1 साल लग जाएंगे no doubt about that. But अगर तुम्हें लग रहा है ना ब्रेक लेनी है मतलब या तुम्हें एक्सप्लोर करना है उस मामले में मैं ये कहूँगा क्योंकि एक्सप्लोरेशन ना पीजी के बाद बहुत टफ होती है. You're sort of stuck कि अब मेरे को ये ब्रांच करनी है. आपने बीट्स कर ली तो मेरे को पीडियाट्रिशियन ही रहना है या मैंने रेडियो कर ली तो मेरे को रेडियोलॉजिस्ट ही रहना है. एमबीबीएस के बाद पिवटिंग फिर भी आसान है. इन दैट वे लाइक एमबीबीएस इज लाइक इंजीनियरिंग. अगर तुम्हें जैसे लोग कहते हैं ना हम पहले इंजीनियर बनो और इंजीनियर बनने का सोचो कि क्या करना है. तो अगर क्योंकि एमबीबीएस वाले लोगों का समहाउ दिमाग ये रहता है ना कि यही मतलब डॉक्टर ही बनना है. अगर इफ यू आर समवन हु वांट्स टू थिंक अवे फ्रॉम दैट या उसे थोड़ा पिवट करना चाहते हो which I implore a lot of people should do. Because a lot of us had been forced into this profession, let's be honest about this. Maybe none of us were, but a lot of the people were sort of forced or were, you know, हम लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे थे कि पापा बनना चाहते हैं. Yeah, even if not forced, तब consciously नहीं सोचा. Consciously इतने दिमाग में मतलब तब लगा. इतना. Yeah, I wanted to be a doctor. नहीं, not in your case, मतलब वैसे नहीं बहुत मतलब बात मैं कर रहा हूँ. not our case में अपनी बात हम लोग की बात ही नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि but for a lot of people पापा ने बोला डॉक्टर बनना है तो चलो डॉक्टर बन गए. मैथ्स नहीं पसंद डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए ट्रू है. मैथ्स नहीं पसंद डॉक्टर बनना इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मतलब साइंस पसंद है मैथ्स नहीं पसंद डॉक्टर बनना है. ये दिस थ्री कॉम्बो जो बहुत कॉमन है. है. तो अगर तुम्हें कुछ पिवट करना है एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न तो पोस्ट एमबीबीएस इज द बेस्ट टाइम. तो उस समय डोंट बी इन द रैट रेस कि अभी पीजी निकालनी है. एमबीबीएस के बाद तुम आराम से पिवट कर सकते हो. एंड पिवटिंग के ऑप्शंस वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस इंक्लूड योर यूपीएससी ऑब्वियसली. बट is UPSC still a good option for people doing MBBS? मतलब मैंने आजकल सुना है कि थोड़ा so you have to change your basically यूपीएससी में जो क्वेश्चन जो तुम्हारा वो सब्जेक्ट होता है whatever जितना मेरे को ऑब्वियसली ऑप्शनल जो है जो ऑप्शन तुम्हारा सब्जेक्ट होता है. तो अगर तूने मान लिया 600 नंबर का पेपर है ठीक है तूने मेडिसिन लिया तो मेरे को बता कि 600 नंबर का हमारा होता था सर्जरी में गोल्ड मेडल कितने नंबर पे आता है. मेरे मार्क्स कितने थे 400 कुछ पे आता है. 450 पे आ जाता है ना. तो तू ये मान कि अगर तूने यूपीएससी का पेपर लिखा और तूने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर लिखा तो वहाँ पे तेरे को 450 नंबर ही मिलेंगे. जबकि दूसरे ऑप्शनल्स में वो तुम्हें 550 570 या 580 भी दे देंगे. बिकॉज इन जनरल मेडिसिन में लोग कम नंबर दे रहे होते हैं. दैट सेम थिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन यूपीएससी आल्सो कि वहाँ के जो लोग हैं जो लोग चेक करने जा रहे हैं वो मेडिसिन वाले ऑप्शन में पेपर नंबर ही नहीं दे रहे हैं. So the doctors who are clearing it now actually have started using other options. Psychology especially as anthropology लेते हैं कई लोग. Anthropology, psychology as their optional because देखो पढ़ने की आदत तो हमें ऑलरेडी है ही. कुछ भी पढ़ लोगे और वैसे भी मोस्ट लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं 11वीं 12वीं. ठीक है तो those are like literally this book. तो it's very easy तो so the जो लोग डॉक्टर्स का नहीं निकल रहा सबका निकल जाएगा अगर ऑप्शनल चेंज करते हैं. So UPSC is a viable option. Other option I would say is a really unexplored option. It's MBA. हाँ. MBA मतलब मैंने तो बहुत लोगों को अब देख लिया एक्चुअली में ना मतलब बहुत इन द सेंस इतने देख लिया कि I now know it is a viable option. क्या तो देख लिया? प्रदीप जिंगा did IIM for IIM से किया उसने अभी. अच्छा एक निखिल ने किया निखिल गुप्ता ने की है. विक्रम ने की है. विक्रम ने की है. Not MBA की थी क्या किया था whatever it was something related to that. something. विक्रम US में है. US में. So फाइनेंस में मतलब I'll say that हमारे MBA 70 बैचमेट्स होते थे तो हर बैच में एक या दो लोग कर रहे हैं. Let's put it that way. तो हमारे बैच में नहीं किसी ने की. हाँ हमारा बैच तो वैसे ही बहुत टिपिकल सब बैच. हमारा बैच में यूपीएससी भी किसी ने नहीं किया. यूपीएससी तो ऑफ लेट है. कैनरा ने किया है. हाँ बट वो भी कर अभी तो करंटली इज डूइंग न्यूक्लियर मेडिसिन. ठीक है निकल गया उसका बट है ना. So in the sense कि MBA is a very viable option. And IIM वगैरह में I think there is a वो diversity quota type कोटा सारी होता चीजें है होती है. हाँ वो definitely. They want diversity in their application तो वो not doctors just prefer करते MBBS. हैं.
they take, जैसे अभी मैं एक बार बीच में आया, मैं अहमदाबाद गया था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि आयुर्वेद डॉक्टर्स लेते हैं वो अपने उसमें, मतलब एक उन्होंने डॉक्टर पूल बना रखा है जिसमें डेंटिस्ट, एमबीबीएस एंड अलाइड चीजें, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उस सब में से दे वांट सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो इट्स इज काइंड ऑफ इजियर to get in if you have that IQ and kind of mind. The other option I want to really say, which a lot of people don't know, don't think about, is going to US for research through the USMLE path. You don't need to match into medicine to go to US. There are other branches also through USMLE which are very less competitive, and then you can actually pursue a research-based career there. For example, pathology. अगर तुम, जैसे a lot of people ask me कि सर मेरे को रिसर्च का बहुत मन है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर रिसर्च करनी है, आपको कोई बेसिक या ट्रांसलेशन रिसर्च करनी है, सो द इजीएस्ट, मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स को लोगे तो इट बिकम्स बायोकेमिस्ट्री एंड pathology is difficult to match into the US. नॉट एट ऑल. मतलब internal medicine and neurology are probably the easiest. नहीं, path is decently easy. People just don't know about it. एक हमारी सीनियर भी तो है, हर्षमर इज इन पाथ, है ना? She's in jobs up there. है ना? If not US, then UK and all these UK. countries also have the option, and you can go there to do research, because research frankly in India is a joke. tough. I won't say joke, it's tough. I would say it takes a lot of courage to actually. कुछ ही जगहों पे बहुत ढंग से, कुछ ही जगहों पे हो रही है और वहाँ पे भी मतलब धक्के से हो रही है, but it is happening in spite of the institute rather than because of the institute. Right, in spite of the institute, with pockets of good people doing good work. It's happening because those people are so passionate about research that they will end up doing it anywhere. ठीक है, let's say if you choose to do an unconventional path after MBBS, so typically कितना time एक बंदा इन्वेस्ट करेगा? Because like obviously if you choose an unconventional path, I would simply say that आप 3 साल इन्वेस्ट कर दो किसी भी अनकन्वेंशनल पाथ में, आपकी लाइफ इधर की उधर कहीं नहीं होने वाली. The reason I'm taking this 3-year figure is because आप 3 साल के बाद जैसे आप लगाते हो 5-6 महीने पीजी निकालने में, क्योंकि आपने जैसे 3 साल में फिगर आउट कर लिया कि मेरे से नहीं होगा ये अनकन्वेंशनल पाथ. 1 साल लग जाता मान लो. हाँ पीजी के बाद. द रीजन आई सेड कि 3 साल आप लगा लो किसी अनकन्वेंशनल पाथ में, कुछ इधर उधर का कुछ नहीं बचने वाला. इज सिंपली बिकॉज आपके, क्योंकि आप अपने बैचमेट्स को कंपेयर करोगे, आपके मैक्सिमम बैचमेट्स के भी पीजी 1 साल के बाद ही निकली होगी, तो आप 2 साल पीछे हो. उसके बाद देखना क्या होने वाला है. आप क्योंकि आपको लगेगा कि आप पीछे हो लाइफ में, आप अपनी एमडी में थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, और या जहाँ एमएस में ज्यादा पढ़ लोगे, उनको अपनी एमसीएच निकालने में 1 साल लग जाएगा, आप पहले में निकाल लोगे, तो एंड रिजल्ट में एक साल का ही फर्क पड़ने वाला है. Which is the reason I came to this figure of 3 years. कि अगर आप एमबीबीएस के बाद 3 साल किसी अनकन्वेंशनल पाथ को देना चाहते हो, be it you unconventional by means, let's not call this unconventional, let's call it non-PG paths. ठीक है, अगर less explored. हाँ, so अगर आप 3 साल के लिए किसी भी पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, so MBBS is the time to pivot and do that exploration in that those. और 3 साल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ, 3 साल के बाद देखना बताऊँ क्या होगा कि आपने 23 में MBBS खत्म की, 26 के हो गए हो, तो जब आप 27-28 के हो जाते हो ना, तब फिर एक्चुअली में आपको भी खुद लगने लग जाएगा कि मैं कुछ कर लेता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग. एंड या तो आपका अनकन्वेंशनल पाथ चल पड़ेगा या तो आप वापस आ जाओगे. आप यहाँ वापस आ जाओगे. तो 26-27 पे आप थोड़े वैसे मैच्योर हो जाओगे, पहले वापस आ जाओ बेसिकली. You would 25, like you know, post 25 you yourself start to become mature, and you would in that 25 to 26 age group तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे यहाँ अनकन्वेंशनल पाथ जो है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा, या तुम वापस आ चुके होगे अपने उसमें, नहीं चल रहा तो तुम 1-2 साल में वापस आ जाओगे. तो what I said in the beginning also of this show कि अगर पिवट करना है तो एमबीबीएस के बाद ही is the best time to pivot. So don't be in that rat race. तुम्हारे पास प्रॉपर 3 साल हैं to actually explore any goddamn thing. और करना चाहते हो तो प्लीज बेझिझक के करो, क्योंकि तुम्हारे पास एमबीबीएस की डिग्री है, तुम अनएम्प्लॉयबल नहीं हो कभी. तुम्हें अगर लगे ना अनकन्वेंशनल एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे चाहिए अपने आप अपनी जिंदगी साथ में काटने के लिए, तो हाउस जॉब करते हो? not house job, but you can always join some random corporate for you know कि आप हर तीसरे दिन एक ड्यूटी कर रहे हो. Actually RMOs की बहुत सारी requirement होती है, exactly, and they give you like 5,000 rupees for a 24 hour.
हाँ है आराम ना? से so they earn Five- 70 to 80,000 corporates में MBBS हाँ। students. तो अब they give you around 5 to 7,000 per 24 hours. तो आप like let's say महीने के 7 ड्यूटीज कर लो तो आप 50,000 रुपए कमा लोगे. And still you will have 21 days to explore that unconventional path of yours. ये भी ऑप्शन होता है है एक्चुअली ना? कि पर 24 आवर ड्यूटी यू गेट मनी. जैसे अगर हम मान लें ना कि एक हफ्ते में आपको 48 आवर्स करने हैं तो वही हफ्ते में 2 ड्यूटी जाती हैं, महीने की 8 ड्यूटी जाती हैं. ठीक है, तो एक ही बात है, उतने पड़ जाता है, तो उसके हिसाब से पेमेंट हो जाती है 50 to 60,000 पर मंथ. इजीली यू कैन अर्न वर्किंग 8 to 9 days per month. हाँ, तो in that way you still have that कि मेरे को कुछ unconventional करना है कि भाई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ साथ में. तुम अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, तुम महीने के कमा लोगे वो 50 से 70,000 रुपए. That's the one big advantage of having an MBBS degree. And और 3 साल तुम आराम से दे सकते हो. अगर तुम्हें लग रहा है, जैसे तेरे को लग रहा है ना, ऑल्दो तेरे को तो पता है कि तेरे को पीजी करनी है, बट तेरे को करना है मेरे को ब्रेक लेनी है. लेट्स से एम्स वालों के लिए तो इनफैक्ट ब्रेक लेना भी बहुत आसान है. आराम से मैं तो कहूँगा चुपचाप बैठ के नॉना कार्ड करके है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बामे का एग्जाम्पल ले सकता हूँ फॉर दैट मैटर कि ही न्यू कि उसको यूएस जाना है या UK अगर इंडिया में रहना है तो उसको साइकी करनी है, बट ही न्यू कि उसको एमबीबीएस का कुछ नहीं करना था, मतलब ही वांटेड टू टेक दैट ब्रेक. सो आराम से 1.5 ईयर अपनी तैयारी करी, है ना, फिर करी, आरटी करी, फिर वो ड्रग वाला कौन सा है वो एनडीटीसी में गया, साइकी वाली और फिर ब्लड बैंक गया आराम से, फिर 1 साल बैठ के पढ़ाई करी, फिर उसका लैब किया. ही इज देयर इन यूके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. साइकी रेजिडेंसी. No rush, exactly. For 3 years, no rush. The rush that has been, that you feel, it's all created by coaching institutes, it's all created by your mind, it's all created by society or everything. There is, for 3 years, there is absolutely no rush. Like, but coming back to your thing as well, कि since you said that you want to do PG and you want to do PG in a medical branch, and तू ये सोच रहा है कि मैं PG में इंटर्नशिप थोड़ा पढ़ूं कि ना पढ़ूं. अगर ये डिलेमा है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो आई वुड से थोड़ा पढ़ ले. इतना पढ़ लो कि फर्स्ट सेकंड ड्रॉप हो जाए. हाँ, ये मत बिल्कुल ही छोड़ो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है. अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें पीजी करनी है ना, हाँ, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि फिर प्लीज पढ़ लो हाँ, और फिर कोशिश करो कि जितनी जल्दी निकले ताकि वही मेरा point है. because this phase is tough. हाँ, वही मेरा पॉइंट है, बिकॉज दिस फेज इज टफ. जब आप लेकिन प्रिपरेशन और ना हो भी मतलब. हाँ, तो मतलब अच्छा. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू डू पीजी एंड मुझे स्ट्रगल हो रहा है टू हाउ टू डू पीजी, देन जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस फेज, ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल. बट अगर आपका होल डिलेमा है कि मुझे पीजी ही करना है कि कुछ और करना है, देन इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक. So the break should serve a larger goal essentially. हाँ, एंड फ्रैंकली इस टाइम पे स्पेशली अगर आपका बहुत सेकंड अटेम्प्ट में नीट निकल गया है या इवन थर्ड अटेम्प्ट में भी नीट निकल गया, देयर इज एब्सोल्युटली कोई रश नहीं है यार. यूएस में डॉक्टर्स लोग 35 36 की एज पे बन रहे होते हैं आराम से, तो कोई भी ज्यादा रश नहीं है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत है इंडिया में बहुत है. प्लस पोस्ट पीजी आपके 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बहुत होते हैं फ्रैंकली. आप देखो ना, एक बार आप रेजिडेंसी में पहला चेक आता है, एम्स की सैलरी 1 लाख रुपए आती है, आपको लगता है कि भाई इतने पैसे का क्या करूं मैं, क्या करूं. एमबीबीएस में 15,000 में हो जाता था पूरा. पहली सैलरी में से कितना खर्च कर दिया था यार मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक on an average जब आपको कर पाया हूंगा, मैं ज्यादा तो नहीं कर पाया. और एवरेज 3 साल में आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या रहता था? तो मतलब पीजीआई में थोड़ी एम से कम आती है बिकॉज टायर 2 सिटी है चंडीगढ़, तो डीएनएस तो डीए कम आता है और एचआरए कम होता है. इनफैक्ट एचआरए वेरी करता है ना सबका. आप हॉस्टल में नहीं रहते थे पीजीआई? आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल, तो मेरी अराउंड 80 के अराउंड आती सैलरी पीजीआई में. तो उसमें से यार बाहर भी खा लो, बंदी के साथ भी घूम लो, तब भी 20-25 हजार 30,000 मान ले. ज्यादा क्या क्या खर्चा करेगा तू? मैस में खाएगा ही ना कभी तो. 50,000 बचा रहे थे. हाँ, लड़कों के थोड़े ज्यादा बच जाते हैं, शॉपिंग कम होती है हमारी. गर्ल्स का एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा होता है. हाँ, मेरी वाइफ का ज्यादा एक्सपेंडिचर है मुझसे. तो ना वंस यू स्टार्ट लिविंग विद देम यू गेट टू नो दिस, रियलाइज कि ये पैसे जा कहाँ रहे, ये जॉइंट अकाउंट भर के नहीं रहा. तो उनके थोड़े एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं पर मंथ, बट आराम से 40,000 तो कम डाले. तो विद दिस विल रैप अप दिस टुडे सेशन. टू समराइज, हमने ये बात करी कि व्हाट आफ्टर एमबीबीएस. तो अगर ये क्लियर है कि पीजी करना है तो इट्स गुड है टू एटलीस्ट स्टार्ट स्टडीइंग इन इंटर्नशिप फर्स्ट सेकंड ईयर, ट्राई टू फिनिश इट अप, एंड देन 6 months to 1 year में you'll
easily be able to crack it. And अगर आपने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया पढ़ना इंटर्नशिप में, अगर नहीं डिसाइड है कि पीजी करनी है, कुछ और करना है, इंडिया में रहना है, यूएस में रहना है, शुड आई टेक अ ब्रेक टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमली, यूके लैब, यूपीएससी, इट्स फाइन टू टेक अ ब्रेक because this is the best time that you can take it.